First question, we are given f of x is what? 2x square minus 3x plus 4. ये दिया है हम लोग को. Okay, we have to find what? F of x at x is equal to 7. Okay, find f of x at x is equal to 7. It's very simple question. x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 7. हाँ है ना? तो 2 into 7 square minus 3 into 7 plus 4, which comes out to be 81. समझ में आया ये? Yes or no? अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग को मान लो f of -2t निकालना है, f of -2t, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या डाल देंगे? -2t. क्लियर है ये? हाँ है ना? wherever we have x, we'll put -2t. क्लियर है? Yes or no? So on solving, we'll get f of -2t is equal to is it clear how to solve these two questions? Yes or no? Okay. Yes, any doubt? जल्दी बताओ, कोई डाउट है किसी को? No. Okay. The next question we have t of m. We are given t of m. It is given as 3m square minus m, and t of m is equal to 4. Find m. ऐसा ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? कोशिश करो खुद से, ट्राई. यस, t of m को हम लोग क्या रखेंगे? 4. So we get a quadratic. So 4 is equal to 3m square minus m. So from this we get a quadratic, which is 3m square minus m minus 4 is equal to 0. So this quadratic can be solved like this: 3m square minus 4m plus 3m minus 4 is equal to 0. Factors आ गए, तो 3m कॉमन निकाला, नहीं m कॉमन निकाला, we get 3m minus 4 plus 1 कॉमन निकाला, 3m minus 4 is equal to 0. So m plus 1 into 3m minus 4 is equal to 0, which gives the value of m as -1 or 4/3. Clear? Yes. कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? Anyone has any doubt? Very simple question. Write it down. Yes, if anyone has any doubt, let me know. Okay, so let us move on to next question. लिख लिया यहाँ तक? Yes or no? Okay, next simple question. We have an equation, okay, which is like this: 4x plus 7y is equal to 1. We have to express y as a function of x and x as a function of y. Clear है? We have to express y as a function of x and x as a function of y. Okay, so y as a function of x कैसे आएगा? 7y is 1 minus 4x, so y is 1 by 7 minus 4 by 7 into x. बराबर है कि नहीं? So this is y is function of x. Okay, फिर दूसरा, we have 4x is equal to 1 minus 7y from the same equation. So x is 1 by 4 minus 7 by 4 into y. So we get x is function of y. Is it clear how do we do this? Y is function of x and x is function of y. Clear है? है ना? Any doubt? Yes, please go in. Done?
Yes. Okay, so let us move on to next question. So in the next question, we have to find domain and range. Find domain and range for y is function of x given by the expression root of 9 minus x square. ओके, तो ये निकालना है हम लोग को। तो कैसे करेंगे? डोमेन मतलब क्या? x वैल्यूज। रेंज मतलब क्या? y वैल्यूज। ओके, तो ऐसा हम लोग को निकालना है। तो डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे? तो लेट अस थिंक अबाउट दिस। ओके, सो वी हैव in this case y is equal to root of 9 minus x square. Okay, so for this expression to be okay, what do we need? 9 minus x square कैसा होना चाहिए? ये स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए कि नहीं? हाँ ना, रियल नंबर्स के लिए, यस और नो? तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस, या इसको उल्टा कर सकते हैं एक्सप्रेशन को, 9 minus x square is greater than 0, so x square minus 9 is less than 0. Okay, less than or equal to 0. क्लियर है? दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसको लिख सकते हैं x minus 3 into x plus 3 less than or equal to 0. बराबर है कि नहीं? हाँ ना? Yes, anyone has any doubt up till this step? No. Okay, अब उसके बाद नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट किए। ओके, वी आर प्लॉटिंग व्हाट will equate x minus 3 to 0 and x plus 3 to 0. Okay, so x will come out to be 3 or x will come out to be minus 3. तो ये वैल्यूज हम लोग रख देंगे, x is equal to 3 और x is equal to minus 3. तो यहाँ पे -3, यहाँ पे 3। क्लियर है ना? अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा है, x minus 3 into x plus 3. ओके, अब इसको y बोल दो। अगर मैंने नंबर ग्रेटर देन 3 लिया, जैसे कि 4 या 5, ओके, तो y क्या आएगा? 4 minus 3 into 4 plus 3. Is it going to be positive or not? Yes, it is going to be positive. Okay, तो पॉजिटिव होगा तो 3 के आगे जो भी नंबर्स है उसके लिए पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट साइन करो, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ओके, अब हमको ये फंक्शन कैसा चाहिए था? We needed this to be less than or equal to 0, है ना? तो ये कहां पे हो रहा है? So this is between -3 and 3, yes or no? है ना? तो x का कौन से वैल्यू के लिए लेस देन, और ये एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो इट इज फॉर x बिटवीन -3 एंड +3. सो दिस इज द डोमेन। ये हमारा क्या आ गया? डोमेन। क्लियर है? x का वैल्यू मतलब क्या आएगा? डोमेन। यस, कोई डाउट है किसी को इस मेथड में? वी हैव y is root of 9 minus x square एंड स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा फॉर व्हाट? रियल रूट्स। तो अगर मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट व्हाट? x square minus 9 लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी क्या हो जाता है? रिवर्स। ओके, जो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू। ओके, अब x square minus 9 इसको हम लोग a square minus b square के फॉर्मूले लिख सकते हैं, a minus b into a plus b. Okay, this is less than or equal to 0 and equating to 0 we get what? -3 and +3 as the roots. -3 and +3 जो रूट्स है इनको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अब मैंने नंबर लिया जो कि ग्रेटर देन 3 है, जैसे 4, तो 4 पे ये जो इक्वेशन आ रहा है हमारे पास ये कैसा हो जाता है? ग्रेटर देन 0। जैसे सोचो y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? x minus 3 into x plus 3। अगर मैंने 4 लिया y, x को क्या लिया? 4। ओके, तो x को 4 लेने पे क्या हो जाएगा? 4 minus 3 into 4 plus 3. दिस नंबर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन 0 बना दिया 4 पे। क्लियर है? तो 4 पे ग्रेटर देन 0 क्यों आया समझाइए। अब ऑल्टरनेट साइन करो। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो वेरीफाई करके देखो, दिस मेथड इज करेक्ट। टेक अ नंबर बिटवीन व्हाट? -3 and 3, लेट अस से 0। ओके, तो एक्सप्रेशन को 0 डाल के देखो,
तो 0 minus 3 into 0 plus 3 which is minus 9 which is less than 0, तो नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? फिर यहाँ पे कोई नंबर ले लो -5, तो -5 ले रखेंगे तो क्या आ जाएगा? इट विल बी पॉजिटिव। ओके, है ना? नेगेटिव इंटू नेगेटिव कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। ओके, तो ये मतलब बराबर है, ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? है ना? तो इसीलिए x का वैल्यू क्या आएगा? -3 से 3। सो दिस इज व्हाट माय डोमेन। अब हम लोग रेंज निकालते हैं। ओके, तो रेंज कैसे निकलेगा? एक आंसर तो आ गया हमारा डोमेन, तो डोमेन इज दिस। ओके, अब रेंज कैसे निकलेगा हम लोग का? रेंज इज द वैल्यूज ऑफ y। ओके, तो y का वैल्यू क्या था? √9 - x²। ये वैल्यू था कि नहीं? है ना? ओके, अब सोचो थोड़ा, √9 - x², इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज व्हाट? स्क्वायर रूट। ये जो आएगा √9 - x², इसका हम लोग वैल्यू सोचेंगे रेंज निकालने के लिए। ओके, अब स्क्वायर रूट कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं? ओके, तो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बात नहीं करें। ओके, तो 9 - x² कैसा हो गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसा ही एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं? फिर से ऐसा ही एक्सप्रेशन। ओके, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे 9 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये 9 - x², लेकिन है क्या? ये तो y² है ना? है कि नहीं? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं? 9 - x² इज व्हाट? y²। इट इज इक्वल टू व्हाट? y²। अगर मैं ऐसे लिखूं तो y is √9 - x² which is always greater than or equal to 0, and 9 - x² is always a positive number। ओके, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पे x का वैल्यू आता है -3 से 3। ओके, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ आता है? -3 से 3। ये मैंने ऑलरेडी निकाल के बताया डोमेन में। ओके, तो अब y का वैल्यू क्या आएगा? तो देखो y का वैल्यू बनाना पड़ेगा हम लोग को। कैसे बनाएंगे? तो देखो x लाइज बिटवीन व्हाट? -3 and 3, करेक्ट है ना? तो x² लाइज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? x²। ओके, तो -3 का स्क्वायर 9 और 9 मत लिखो ऐसा। क्यों? क्योंकि -3 का स्क्वायर, ये जो हम लोग का मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगा स्क्वायर का। समझाए? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू स्क्वायर का क्या होगा? 0। ओके, तो x² लाइज बिटवीन 0 एंड 9। ओके, अब हम लोग को -x² अगर किया तो आइडेंटिटी रिवर्स हो जाएगा, है ना? क्योंकि नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते ही हम लोग का आइडेंटिटी रिवर्स हो जाएगा। अब 9 - x² बनाओ। 9 - x² क्या होगा? हम लोग हर साइड का इक्वेशन किससे ऐड करेंगे? 9 से। ओके, तो ये हो जाएगा 0। 9 - x² लाइज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? 0 एंड 9। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा इक्वेशन आएगा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब रूट ले लो। अब ऐसा सब मैं क्यों कर रहा है? व्हाई एम आई डूइंग लाइक दिस? बिकॉज आई वांट टू जनरेट दिस। व्हाट इज द टर्म? y जो कि हम लोग का कितना था? √9 - x²। तो इसीलिए मैंने √9 - x² को y सब्स्टिट्यूट कर दिया। इट लाइज बिटवीन 0 एंड 3, है ना? अब 0 एंड 3 के बीच में y लाई कर रहा है, इसका मतलब रेंज क्या है? रेंज इज लाइंग बिटवीन व्हाट? 0 and 3। okay, so the answer for range, it comes out to be between 0 and 3. So this is another answer for range। okay, so write this domain and range for y is equal to f of x, right? ये लिख के हो गया तो बोल दो मेरे को। डन। यस, डोमेन तक लिख लिया, तो रेंज निकालना है, मतलब y is √9 - x²। तो इसलिए मेरे को x का यूज करके हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो x का वैल्यू लिया और y का वैल्यू जनरेट किया। ओके, x² लाइज बिटवीन 0 एंड 9। क्लियर है? -3 का स्क्वायर 9 मत लिख दो इधर। ओके, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालना। मिनिमम वैल्यू 9 से 9 नहीं आएगा, 9 ही नहीं आएगा, मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। ओके, 9 - x² जनरेट किया और वो जनरेट करने के बाद स्क्वायर रूट लिया, लेकिन 9 - x² का रूट y है, तो आ गया।
Yes, domain and range, is it clear? Is the method clear? First we get the x value and that is the domain, then we get the y value using the x value and that is the range. ओके तो ये लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हो गया सबका लिख के? लेट अस गो ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसका क्या निकालना है? डोमेन। ओके, डोमेन मतलब एक्स वैल्यू। तो देखो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो कैसा होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, which is giving us x minus 2 into x square plus 2x plus 4 is greater than or equal to 0. कैसे? a cube minus b cube. It can be written as a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, ये expression use किया. Okay, तो x minus 2 is greater than or equal to 0 and x square plus 2x plus 4 is what? Greater than or equal to 0. Okay, तो x is greater than or equal to 2 and ये quadratic solve करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होता है? तो लेट अस राइट इट इन दिस फॉर्म, x plus 2 the whole square. अब x plus 2 the whole square greater than or equal to 0 कब होता है? ओके, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। यस और नो? ऑलवेज ट्रू है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू। तो नंबर लाइन पे हम लोग नंबर्स प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन है ये। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कौन से नंबर है? ये 0 है और ये क्या है? 2 है। ओके, अब x ग्रेटर देन 2 ये है। ओके, है ना? और बाकी ये एक्सप्रेशन तो हमेशा ही ट्रू है। तो व्हाट इज आवर आंसर? तो आवर आंसर इज डोमेन इज x greater than or equal to 2, that is 2 to infinity. Clear? This is the final answer. लिख दो ये। इस लिख के हो गया ये? है ना? ओके, कोई डाउट है इसमें? इस कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन फॉर डोमेन एंड रेंज मोर क्वेश्चंस। ओके, सो मोर क्वेश्चन, लेट अस सी question number 7. Okay, so we have a function whose domain and range we have to find. So we have to find domain and range for y is equal to 6 minus 4x square upon 4x plus 5. Okay, ये फंक्शन है हमारा। तो इसका डोमेन एंड रेंज कैसे निकलेगा? तो सोचते हैं हम लोग। लेट अस थिंक अबाउट द डोमेन। डोमेन मीन्स x वैल्यूज, रेंज मीन्स y वैल्यूज। ओके, अब देखो पहले तो ये फंक्शन जो है हमारा ये डिफाइंड होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? डिफाइंड। ओके, तो ये अनडिफाइंड कब होता है? इफ 4x plus 5 is equal to 0, that means x is equal to minus 5 by 4, then y is undefined. y is equal to f of x कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड, है ना? तो डोमेन क्या आएगा? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, है ना? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हाट? माइनस 5 by 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर, है ना? अब इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है? रेंज। ओके, तो रेंज कैसे मिलेगा हम लोग सोचते हैं। ओके, तो रेंज निकालने के लिए मतलब क्या? y का वैल्यू। ओके, तो y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो लेट अस थिंक y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। ओके, तो देखो पहले तो हमारे पास y का एक्सप्रेशन क्या है? इट इज 6 minus 4x square upon 4x plus 5. दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, तो y का हम लोग का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मल्टीप्लाई। सो y into 4x plus 5 is equal to 6 minus 4x square. ओके, अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये ऐसा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्लियर है?
अब ये क्वाड्रेटिक इन व्हाट है, x, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x, तो क्वाड्रेटिक इन x है, तो हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इन x करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये सी है कि नहीं, हाँ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इस थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इन एक्स है ना, तो बी क्या आएगा, बी विल बी 4y, क्यों, क्योंकि 4x स्क्वायर प्लस 4y इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा एक्सप्रेशन, तो इसको कंपेयर करें तो ऐसा आएगा ये, ओके, तो a is what 4, b is what 4y, c is what 5y minus 6, तो b square क्या हो जाएगा, b square minus 4ac will be what, b is 4y the whole square minus 4 into a into c, ऐसा हो जाएगा, ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, तो 16y स्क्वायर माइनस 16 इंटू 5y माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यही मैं यहाँ लिख रहा है। अब अगले स्टेप में इसको उधर लेके जाएंगे, 16 कैंसिल कर दिया, 16 कैंसिल, तो y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, अब इससे y का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं, हाँ है ना, यस और नो, so from this we'll factorize this, इसको हम लोग क्या करेंगे, factorize, तो y minus 2 into y minus 3 is greater than equal to 0, अब ये नंबर लाइन पे प्लॉट करके जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे, y minus 2 into y plus y minus 3 is greater than or equal to 0, ओके, तो क्या होगा 2 और ये 3, अब y minus 2, तो देखो पहले तो नंबर ग्रेटर देन 3 पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चाहिए इस बार, तो y इज व्हाट माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड यूनियन 3 टू इंफिनिटी, क्लियर है, ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ओके, सो दिस इज अवर y, मतलब क्या आ गया, रेंज, माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, सो दिस इज अवर आंसर, और 3 को इंक्लूड करना, 3 टू इंफिनिटी, ओके, सो दिस इज द रेंज, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स except what, and range is minus infinity to 2 union 3 to infinity, so this is the final answer, ये समझा ये डोमेन रेंज कैसे निकालने का, तो write this range part, यस लिख के हो गया ये, हाँ ना,
Okay, so after this ये नंबर लाइन मेथड समझ में आया सबको? हाँ ना? Yes, is it clear? Number line method. Yes, let us see more questions. Try to solve more questions based on this. Yes, eighth question. Okay, so eighth question, try. 5 raised to 2x plus 7. It is 125. Okay, तो ये simple question है, इसमें x का value find करना है. Very simple. Yes, तो कैसे करेंगे? 5 raised to what is 125? So it is 3. Okay, so we can say 5 raised to 2x plus 7 is equal to what? 5 raised to 3. Okay, so 2x plus 7 comes out to be 3. So 2x comes out to be minus 4. So x comes out to be minus 2. Okay, so x value comes out to be minus 2. So very simple. Just write this. Yes, so after this, let us move on to ninth question. In the ninth question, we are given find the domain of the function y is equal to f of x is equal to square root of 6 minus 2 raised to x minus 2 raised to 3 minus x. So find the domain. Yes, anyone else able to solve this question? Y is equal to f of x is root of 6 minus 2 raised to x minus 2 raised to 3 minus x. Okay, so we have to try this question. Find the domain. That means find the value of x. Okay, so the quantity inside the square root, it has to be what? Greater than or equal to 0. Yes or no? The quantity inside the square root, it has to be greater than or equal to 0. Okay, so from this we can say, let us convert it into a slightly different form. So this is the new form. 6 minus 2 raised to x minus 8 upon 2 raised to x greater than or equal to 0. So let us substitute 2 raised to x as t. So we get 6 minus t minus 8 upon t greater than or equal to 0. So which gives us, let us multiply by minus 1. So this is the final expression. Okay, so we have this quantity should be what? Less than or equal to 0. Okay, let us look at the quadratic first. T square plus 8t 8 minus 60 plus 8 minus 60. It is what? Less than or equal to 0. So t square minus 60 plus 8 is less than or equal to 0. So t square minus 4t minus 2t plus 8 is less than or equal to 0. So t into t minus 4 minus 2 into t minus 4 is less than or equal to 0. So t minus 2 into t minus 4 is less than or equal to 0. So between 2 and 4, we have the same number line method.
Let us take a number greater than 4. Let us say 5. It will be come out to be positive. So plus, minus, and plus. So when is this negative? This is negative when t belongs to 2 to 4. Okay, that means 2 raised to x belongs to 2 to 4. Okay, so let us now equate 2 raised to x belongs to 2 to 4. So 2 raised to x in one case is 2, 2 raised to x in another case is 4. So x comes out to be 1, and here x comes out to be 2. Okay, so we can say x lies between 1 and 2. So our final answer is domain is 1 to 2. Okay, is it understood? Write this answer. Just write this answer. Yes, have you written up till here? So write this one, number line method. Any doubt in how to solve the quadratic equation and get the number line? Yes, कुछ doubt है? Yes, Shubham, doubt है? Richa, Aditya, Yash. No, sir. Okay, ये नंबर लाइन मेथड समझ में आया? लिख लिया? No, sir. No. Yes, so this is the domain. कुछ भी डाउट आएगा तो बता दो. ये पेज लिख लिया? ओके, कोई भी डाउट है तो बता दो इधर. ओके, और क्वेश्चन करते हैं फिर. 10th क्वेश्चन. f of x is x square plus 2 and दूसरा फंक्शन है g of x. This is 5x minus 8. Okay, so we have to find what f plus g of 1 ऐसा निकालना है. Okay, so we have to find this. Okay, so let us first understand what is the meaning of this. Okay, so देखो f plus g of x is equal to f of x plus g of x. Clear? है ना? तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? f plus g of x is equal to f of x, which is x square plus 2 plus g of x मतलब 5x minus 8. Okay, so f plus g of x is equal to x square plus 5/8 minus 6. Okay, now if the question says find f plus g of 1, so in place of x we'll put 1. Clear? So this comes out to be 0. Okay, so the answer to the question f plus g of 1 is what? 0. Okay, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं. B part of the same question. f of x, it was given as what? X square plus 2, and g of x is what? 5x minus 8. So we have to find in this case f minus g of minus 2. So this is the question. So first step is what? F minus g of x is f of x minus g of x. What is value of f of x? X square plus 2. What is value of g of x? 5x minus 8. So from this we get x square minus 5/8 minus 6. Okay, so this is the expression. Okay, x square minus 6 नहीं आएगा, plus 10 आएगा. Okay, so here we will have plus 10. Okay, so this is f minus g of x.
So f minus g in this case for -2. So we'll substitute x as -2. Okay. What will be the final answer? 24. Is it clear how we solve this question? Yes or no? Yes, write this. लिख दिया? ओके, कोई डाउट है इसमें? तब नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसका, पहले लिख लो ये। कोई भी डाउट रहेगा तो बता दो। लिख दिया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, C part of the same question. F of x is given to us as x square plus 2 and g of x is given to us as 5x minus 8. So in this case, we have to find f of g of x. We have to find what? F of g of x. So what does this mean? Let us think. Okay, so this is a new symbol, f of g of x. So first try. Yes, f of g of x. How will we find? तो देखो हमारे पास f of x क्या है? x स्क्वायर प्लस 2 है ना। अब x के बदले यहाँ पे g of x चाहिए, तो g of x तो ये है, तो f of 5x minus 8, ये क्या आएगा? x जहां जहां है वहां पे क्या आ जाएगा? 5x minus 8. ओके, तो ये हमारा f of g of x है ना। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। क्लियर है ना? यस। अब ऐसा दूसरा उल्टा क्वेश्चन पूछूं मैं अगर, g of f of x, तो क्या आएगा? g of f of x, तो देखो g of x हमारे पास क्या है? 5x minus 8. तो g of f of x क्या आएगा? जहां पे x है वहां f of x डालो, तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। तो g of f of x ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स f of x का वैल्यू ये है, x स्क्वायर प्लस 2 minus 8. So this is the answer. Clear? Yes or no? Yes. इसको हम लोग दूसरा सिंबल लिखते हैं fog of x. इसको हम लोग क्या लिखते हैं? Gof of x. ये दोनों एक ही चीज है। fog मतलब f of g of x, gof मतलब g of f of x. This is f of g of x and this is g of f of x. Clear? Yes, तो लिख दो ये, write this. Done.
Done? Yes. Okay, so let us move forward. Same question D part. Okay, so same question D part, what do we have? F of x is given to us as x square plus 2 and g of x is given to us as 5x minus 8. Okay, so in this case we have to find fog of 3m. Fog of 3m. Okay, so what will you do? Fog means f of g of x. Okay, so fog of 3m is nothing but f of g of 3m. Okay, so first let us find f of g of x. So f of g of x का मतलब क्या है? f of x का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? x स्क्वायर प्लस 2. ऐसे ही हमेशा सोचने का. तो f of g of x क्या आएगा? जहां पे x है वहां पे g of x रखो. ओके, तो g of x का वैल्यू क्या है? 5x minus 8 का होल स्क्वायर प्लस 2. ओके, तो ऐसा आंसर आएगा. तो फॉग ऑफ x क्या आएगा? 5x minus 8 the whole square plus 2. अब ये आ गया. तो fog of x come out to be 5x minus 8 the whole square plus 2. तो fog of 3m क्या आएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा था. जहां जहां x है वहां 3m डालो. So fog of 3m, it comes out to be 5 into 3, which is 15m minus 8 the whole square plus 2. Clear? अब इसको अगर क्वाड्रेटिक ओपन करें तो क्या हो जाएगा? 15 square is 225. इस वापस देखते हैं. fog of x मतलब f of g of x. तो f of x के एक्सप्रेशन में g of x डालना है x के बदले. तो f of g of x is equal to g of x का होल स्क्वायर प्लस 2. अब g of x का वैल्यू डाला 5x minus 8. 5x minus 8 का होल स्क्वायर प्लस 2. ये आ गया. अब x के बदले क्या चाहिए हम लोग को? 3m. तो x के बदले 3m लिख दिया. तो x के बदले 3m लिख दिया तो ऐसा आ गया. ये क्या आएगा? 5 into 3 15. 225 plus 64 minus कितना आएगा ये? माइनस कितना आएगा? 15 8 का कितना होता है? 120 into 2 which is 240. 240 plus 2 which is 240 into m plus 2. ओके, ऐसे आएगा. तो 225m square minus 240m plus 66. This is the final value of fog of 3m. Write this. Fog of 3m का ये आंसर है. Write this. Yes, clear है? कोई डाउट है इसमें?
क्लियर है? यस, ओके। फिर उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का ई पार्ट, एफ अपॉन जी ऑफ जीरो। तो एफ अपॉन जी मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास? इट वॉज एक्स स्क्वायर प्लस टू, एंड जी ऑफ एक्स क्या था? 5x माइनस 8। ओके, अब जीरो डालना है, तो एफ बाय जी ऑफ जीरो, तो जहां x है वहां जीरो डाल दो, तो ये क्या आएगा? -1/4। सो दिस इज आंसर, लिख दो। डन। यस और नो? लिख दो ये। Okay, so after this, let us go on to next question. This was 10th question. Let us move to 11th question. Okay, 11th question में हमारे पास क्या है? We are given a function phi x square and f of x है वो, ये g of x दिया है square root of 4 minus x. Find domain of f plus g of x. फिर उसके बाद क्या? f by g of x, इसका फाइंड डोमेन। ओके, तो कैसे करेंगे ये? पहले f प्लस जी ऑफ एक्स लिखेंगे, f of x plus g of x. Okay, so this is 5x square plus square root of 4 minus x, like this. Okay, so this is f plus g of x. अब इसका डोमेन फाइंड करना है तो क्या होगा? रूट ऑफ 4 माइनस एक्स को देखो। ओके, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, तो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स इज व्हाट? गिविंग अस 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा, तो x minus 4 is less than or equal to 0, therefore x is less than or equal to 4. तो डोमेन क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। यस और नो? क्योंकि x is less than 4, 4 यहाँ है, तो माइनस इन्फिनिटी से 4 कुछ भी चलेगा, हाँ है ना? तो दिस इज अवर डोमेन। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट कैसे किया समझाइए, डोमेन ऑफ दिस। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, डोमेन ऑफ f बाय g ऑफ x। ओके, तो मतलब क्या हो गया? f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो f ऑफ x क्या था हमारे पास? 5x स्क्वायर। g ऑफ x क्या है? रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब डोमेन में क्या आएगा? ये जो नीचे का डिनोमिनेटर ये जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ है ना? यस और नो? ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 4 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। तो x शुड नॉट इक्वल टू 4। x कैसा होना चाहिए? इट शुड नॉट बी इक्वल टू 4। क्लियर है? x 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस x is 4 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इट विल बिकम अनडिफाइंड। तो 5x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, इसका डोमेन क्या आएगा? यस, एक तो डिनोमिनेटर, और एक बात क्या होगा? 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा। ओके, तो 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस x माइनस 4 शुड बी लेस देन 0, दैट मींस x शुड बी लेस देन 4। तो डोमेन क्या आएगा? लेस देन 4, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -4। इस बार इक्वल टू 4 भी नहीं चलेगा, समझाइए? माइनस इन्फिनिटी से 4, -4 नहीं 4। ओके, सो डोमेन इज दिस, माइनस इन्फिनिटी टू 4। ओके, क्लियर? क्योंकि x इज इक्वल टू 4 पे क्या हो जाता है? इट बिकम्स अनडिफाइंड। क्लियर? लिख दिया?
यस यहाँ पे हम लोग का इक्वल टू 4 भी नहीं चलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्लियर है। यस यहाँ तक लिख दिया। डोमेन रेंज निकालने आ गया। अभी कोई सोचेगा कि यहाँ पे सिर्फ 4 को छोड़ के बाकी सब वैल्यू चल जाएगा, पर वो गलत है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कैसा है हमारे पास स्क्वायर रूट साइन है। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, लेकिन यहाँ पे 0 भी नहीं चलेगा। ओके, लिख दिया ये पूरा। ओके, so let us move forward. Okay, so next question हम लोग सॉल्व करते हैं। Let me remove these pages. Yes, next question चालू करते हैं हम लोग। Yes, next question, let us say 12th question. Okay, domain range अभी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कैसे करने का। Let us go to next question. If we have f of x which is 2 upon x plus 5, okay, f of x को क्या बोला है 2 upon x plus 5 and g of x को क्या बोला है x square minus 1. Okay, so we have to find what f of g of x. ये कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ये f of g जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉग गॉफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शंस। ओके, तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है f of g of x। तो कैसे सोचेंगे इसको, f of x is equal to 2 upon x plus 5। तो f of g of x कैसे सोचेंगे, जहां x है वहां पे क्या डाल दो g of x। क्लियर? तो क्या हो जाएगा f of g of x is equal to 2 upon x square minus 1 plus 5। ओके, तो f of g of x क्या आ जाएगा 2 upon x square minus plus 4। So this is our final answer, f of g of x। क्लियर है ना? यस, कुछ डाउट है किसी को? लिख दो ये, राइट दिस। Yes, let me show you a distinguish between f of g of x। fog जो है, और अगर मान लो अलग होता यही सेम क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा होता, देखो एक तो पूछा है fog of x और दूसरा होता है ऐसा भी सिंबल होता है f into g of x, ऐसा भी एक सिंबल है। ये सिंबल किसके लिए है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस, और ये किसके लिए है कंपोजिट फंक्शंस। ये वाला कंपोजिट फंक्शन के लिए फॉग ऑफ और नीचे एफ जी, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर पूछूं मैं सेकंड पार्ट फाइंड एफ जी ऑफ एक्स, ओके एफ जी ऑफ एक्स, तो क्या होगा अगेन वही हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स क्या था 2 अपॉन एक्स प्लस 5, जी ऑफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर एफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में मतलब क्या f of x into g of x। तो f of x क्या है 2 upon x plus 5, g of x क्या है ये, तो f g of x ऐसे आएगा और fog of x क्या आएगा ये f of g of x। ये हम लोग ने पीछे निकाला, बोथ आर डिफरेंट। क्लियर है ना? यस, इसमें कोई डाउट है?
Yes or no? Yes. So let us move forward. Let us go to next question. अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछता फाइंड गॉफ ऑफ एक्स, फाइंड गॉफ ऑफ एक्स, तो क्या होता? और दूसरा क्वेश्चन जीएफ ऑफ एक्स, तो ये क्या है और ये क्या है? नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या आएगा? तो जी ऑफ एक्स के एक्सप्रेशन में जहां पे एक्स है वहां पे एफ ऑफ एक्स डाल दो, तो गॉफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डाल दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट क्या होगा? जी एफ ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये ऐसा चाहिए तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है। इज इट क्लियर? जी एफ मतलब मल्टीप्लाई करने का और जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, फिर इसके बाद यस और थोड़ा हार्ड कर लेते हैं इसको। 13th क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को क्या दिया हुआ है? सो वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ऐसा तीन दिया हम लोग को। ओके, तो वी हैव टू फाइंड जी ओ एफ ओ एच ऑफ एक्स, ऐसा ऐसा फाइंड करना है। ओके, तो मतलब क्या फाइंड करना है हम लोग को? जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। क्लियर? ऐसा, तो इसका मतलब क्या है? तो जी ऑफ, एक एक सब्स्टिट्यूशन करो, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स के बदले क्या रखेंगे? एच ऑफ एक्स के बदले क्या रखेंगे? वन अपॉन एक्स। ओके, अभी एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे जी ऑफ वन अपॉन एक्स क्या आएगा? वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस फाइव, तो ये आ जाएगा। फाइनल आंसर इज दिस, जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। क्लियर है? पहले एच ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करो, फिर एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डेफिनेशन यूज करो, फिर जी ऑफ एक्स फंक्शन का डेफिनेशन यूज करो। So this is our final answer. Write this. Yes, समझा ये कैसे करने का? हाँ है ना? शुभम, ऋचा, यश, आदित्य, कोई डाउट है इसमें? Yes, is it difficult or is it very easy? Done. Okay, तो ऐसा आएगा हमारा एक्सप्रेशन। ओके, कुछ डाउट है तो बता दो इसमें, फिर नेक्स्ट करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एच ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स माइनस फाइव द होल स्क्वायर। ओके, वी हैव टू फाइंड फंक्शंस f and g such that h is equal to f of g। ओके, तो कैसे करेंगे ये? तो देखो सोचो थोड़ा, h ऑफ x क्या है हमारे पास?
h of x क्या है, दिस इज f of g of x, बराबर है कि नहीं, है ना, ऐसा, तो दिस इज व्हाट f of g of x, ओके। सो लेट अस थिंक, अगर मान लो g of x को मैंने लिख दिया x माइनस फाइव, तो f of x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, है ना। अगर ऐसा है तो f of g of x क्या हो जाएगा, g of x the whole square, which is nothing but x minus 5 the whole square, और यही तो हमें h of x चाहिए था, which is f of g of x, क्लियर, तो ऐसा आंसर आएगा हमारे पास, so this is the answer, okay, write this, लिख दो। यस, समझा ये क्वेश्चन या डाउट है कुछ इसमें, कंफ्यूज होने वाला कोई बात ही नहीं है, उल्टा सोचो, अगर ये क्वेश्चन है और मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता फाइंड f of g of x, तो इसका आंसर वही आता जैसे पहले कर रहे थे हम लोग, यही आता है ना, सो नथिंग कंफ्यूजिंग, तो समझाइए, सिंपल सा क्वेश्चन, ओके। लेट अस मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th question, we have to express m of f(x) is equal to 1 upon x cube plus 7, okay, in the form f of g of h, इस फॉर्म में लिखा है, ओके। तो कैसे करेंगे, x को क्यूब है और 7 को ऐड किया है और रेसिप्रोकल लिया हुआ, ओके, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सोचो, अगर मैंने h of x को डिफाइन किया x क्यूब, ओके, h of x को क्या डिफाइन किया x क्यूब, ओके, और g of x को क्या डिफाइन किया x प्लस 7, और h of x को नहीं, f of x को क्या डिफाइन किया 1 upon x, तो विल गेट द आंसर, यस और नो। अगर ऐसे तीन फंक्शन होते तो हो जाएगा कि नहीं, है ना, सोचो, अगर ये तीन फंक्शन एंड आस्क यू f of g of h of x, तो क्या आएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे f of g of h of x, ऐसा लिखेंगे कि नहीं, है ना, करेक्ट है कि नहीं, तो h of x एकदम अंदर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, h of x को लिख सकते हैं x क्यूब, और g वाले को क्या लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 7, और f वाले को क्या लिखेंगे, तो आ जाएगा कि नहीं m of x, यस, तो ऐसे आएगा, क्लियर, यस, राइट दिस, समझा कैसे करना है ये, so this is how we will express. Just let us now go for next question, which is 16th question. Yes, if f of x is what 9 minus 5x, find f inverse x, okay, f inverse x निकालना, inverse function, okay,